Dear students, today we will discuss about wind energy, the types of turbine, its design, and wind energy's Indian scenario, applications, advantage and disadvantages. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विंड जनरेट कैसे होती है, उसके अलावा साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसकी पावर वर्सेस विंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस किस चीज़ पर वो डिपेंड करता है। आज हम डिस्कस करेंगे विंड टर्बाइन के क्लासिफिकेशन। पहले हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन पावर, लो पावर, इंटरमीडिएट पावर एंड हाई पावर। नाउ it is classified as alignment of rotor axis. This is of two type: horizontal axis wind turbine HAWT and other is vertical axis wind turbine. Now you can see the diagram here. Horizontal axis means the axis at which the generator, gearbox or mainly the shaft is in horizontal direction. This is called horizontal axis wind turbine, where the shaft is in horizontal axis, and where the shaft is in vertical position, this is called vertical axis wind turbine. HAWT comprises of two types, multi-blade type and propeller type. VAWT is of two types, Savanius type and Darius type. Now, horizontal axis wind turbine. First is multi-blade type rotor. It is made up of steel metal blades having more than 12 blades, 12 to 18 blades are there. और अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ब्लेड्स इनर और आउटर एंड पर फिक्स होते हैं और जैसे जैसे सेंटर से आउटर की तरफ को चलेंगे तो इनका विड्थ जो है वो बढ़ती रहती है। अदर वन इज प्रोपेलर टाइप. इट इज मेनली यूज्ड इन जनरेटिंग फॉर लार्ज पावर and commercially this is used everywhere. It has 2 or 3 aerodynamic blades and the size of the blade may be 2 to 25 meter. The rotor diameter is around 2 to 25 meter. These type of blades are made up of fiberglass reinforced plastic. आजकल जो बड़ी जगह पे पावर जनरेट हो रही है उनमें यही वाले ब्लेड्स यूज होते हैं, यही वाला टाइप टर्बाइंस का यूज होता है, जिसमें मेनली 3 ब्लेड्स होते हैं जो horizontal axis wind turbine base पर है. Now the relative advantages and disadvantages. The tall tower base allows access to stronger wind. जितना टावर की हाइट ज्यादा होगी उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा विंड का वो, और उतनी ज्यादा वो विंड के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें टॉल टावर यूज किया जाता है. Its efficiency is also high because the blades always move perpendicular to the wind. विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनका पोजीशन होती है. That's why its efficiency is also high, and it has variable blade pitch which gives the turbine blades the optimum angle of attack. Apart from advantages, there are some disadvantages also. First of all, tall towers and blades up to 90 meters long are difficult to transport. Transportation is a problem in this because around 20% of the equipment cost goes to the transportation. Next is tall turbines are difficult to install. जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगी. थर्ड इज उसके लिए बहुत ज्यादा हमें यानी टावर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें गियर बॉक्स और जनरेटर को होल्ड करना होगा उसके लिए. नाउ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, जिसमें ये वो टाइप है जिसमें रोटर एक्सिस जो है वो वर्टिकल पोजीशन में होती है. यू कैन सी द डायग्राम. फर्स्ट इज सेवोनियस टाइप. इट हैज 2 or more identical hollow semi cylinders fixed to vertical axis. The rotor rotates due to pressure difference. Also driving torque is drag type. इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्रैग और लिफ्ट में क्या डिफरेंस है. ड्रैग मीन्स जो विंड चलेगी तो वो अपने साथ साथ उसको मूव कराएगी. लिफ्ट मीन्स वो प्रेशर डिफरेंस से उस डायरेक्शन से 90 डिग्री मूव करना. तो ये ड्रैग बेस पे है, ड्रैग टाइप इसमें यूज किया जाता है. इट इज सुटेबल फॉर वाटर पंपिंग. बट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को कॉमर्शियल लेवल पे या बड़े पावर जनरेशन पे यूज नहीं किया जाता. बड़े पावर जनरेशन के लिए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन ही ज्यादातर यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज डेरियस टाइप. अब you देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस वेयर द रोटर इज रोटेटिंग
and connected two curved shape blades connected at top and bottom. It operates for wind from any direction, किसी भी डायरेक्शन से मूव कर सकता है. ड्राइविंग फोर्स इज लिफ्ट टाइप टॉर्क and it is used for electricity generation, but obviously not for large level. Advantages of vertical axis wind turbine. पहला तो ये है कि ये बहुत कम हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए हम बहुत ईज ऑफ सर्विस है, आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ज्यादा बड़े टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे भी कनेक्ट हो सकता है. लाइट और वेट टावर्स है. कैन थियोरेटिकली यूज लेस मटेरियल्स to capture the same amount of wind, और विंड को किसी भी एंगल से ये एक्सेप्ट कर सकता है. बट देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. फर्स्ट इज द मेजर डिसएडवांटेज इज इट्स ऑपरेट एट लोअर हाइट, मीन्स वेयर द विंड स्पीड इज वेरी पुअर. जबकि हमें अपने जनरेशन के लिए ऐसी जगह सेलेक्ट करना था जहां पे ज्यादा से ज्यादा हमें विंड स्पीड मिले, बट ये कम हाइट पे होता है, इसीलिए इसमें विंड कम मिलती है, जिसकी वजह से हमें पावर कम जनरेट होती है. सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रेस इज द ब्लेड, रिक्वायर्ड सपोर्ट एट टॉप ऑफ टर्बाइन रोटर. इसमें हमें टॉप से उसको सपोर्ट देना जरूरी है, ये उसकी फिजिकल उसको रोके रखने के लिए. रिक्वायर्स एंटायर रोटर टू बी रिमूव टू रिप्लेस बियरिंग. अगर कोई कमी होती है तो उसको पूरे रोटर को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी. फाइनली द मोस्ट इंपोर्टेंट इज इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इज वेरी वेरी पुअर. इट इज नॉट फॉर कॉमर्शियली यूज. नाउ द डिस्कसिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ टर्बाइन. सी द डायग्राम. These are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here also these are the mentioned. What is that? First is blade. Obviously, you know the blade. It is moving part due to wind interaction. Number 2 is rotor, which is rotates along with the blades. 3 means pitch control. Pitch control ये है कि उसको हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विंड से अट्रैक्शन हो. नंबर 4 इज ब्रेक. हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए ब्रेक यूज करेंगे. नंबर 5 इज लो स्पीड शाफ्ट. आप देखेंगे ये 5 नंबर लो स्पीड शाफ्ट है, जो कि नंबर 6 इज गियर बॉक्स. जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है, वो गियर बॉक्स एक और दूसरे गियर से कनेक्ट है जो हाई स्पीड टॉर्क है. हाई स्पीड शाफ्ट बनेगी. तो आप देख सकते हैं 12 नंबर हाई स्पीड शाफ्ट है और 5 नंबर लो स्पीड शाफ्ट है. द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स इज टू ट्रांसफर दिस rotational energy into another one, means we have to increase the speed of shaft by means of this gearbox. तो जो 12 नंबर है यानी हाई स्पीड शाफ्ट, वो हमने कनेक्ट की है एक जनरेटर से. नंबर 7 मीन्स जनरेटर, जो हाई स्पीड शाफ्ट यहाँ पे गियर बॉक्स के मीडियम से आगे पहुंची है. तो 7 जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद ये 8 नंबर मीन्स कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, विंड स्पीड एंड योर ड्राइव. आई विल टेल यू लेटर कि योर ड्राइव क्या है. कि ये कंट्रोलर इसके मोमेंट को भी कंट्रोल करेगा, ब्रेक्स, विंड स्पीड, सारा कंट्रोल इस 8 नंबर मीन्स कंट्रोलर से होगा. नेक्स्ट 9 एनेमोमीटर, 10 विंड वेन. इन दोनों का फंक्शन विंड की डायरेक्शन बताना है, विंड की डायरेक्शन शो होगी. 11 इज नशाल, यानी ए बॉक्स, द बॉक्स कंटेनिंग ऑल द पार्ट्स, जनरेटर, गियर बॉक्स, शाफ्ट एटसेट्रा. दिस इज द बॉक्स. नेक्स्ट इज 13 मीन्स योर ड्राइव एंड 14 मीन्स योर मोटर. इनका फंक्शन ये है कि ये पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी असेंबली को विंड के अकॉर्डिंग सेट कर सके. अगर विंड की डायरेक्शन बदलती है तो यहां से सिग्नल मिल जाएगा, कंट्रोलर इसको कंट्रोल करेगा और ये पूरी असेंबली उस विंड की डायरेक्शन से हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही रहेगी. विंड डायरेक्शन उसके फेस हो जाएगा. यानी
विंड के जो शाफ्ट है वो विंड की डायरेक्शन के सामने ही रहेगी। बट इसका एक और फंक्शन है योर ड्राइव योर कंट्रोलर का। सपोज आपकी स्पीड, विंड स्पीड बहुत हाई हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई, हम नहीं चाहते कि इस हाई स्पीड पे हमारा ये टरबाइन ऑपरेट करे, तो इसका फंक्शन एक और है कि वो पूरे स्ट्रक्चर को विंड के सामने ना रख के उसको 90 डिग्री मूव करा देगा, जिससे कि अब टरबाइंस के ब्लेड नहीं मूव करेंगे। क्योंकि टरबाइंस के ब्लेड जब मूव करते हैं जब विंड की डायरेक्शन टरबाइंस के सामने से होती है, मींस 90 डिग्री पर होती है। लेकिन जैसे ही हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर को 90 डिग्री घुमा देंगे तो अब विंड के सामने ही वो आ गया, तो अब टरबाइंस के ब्लेड मूव नहीं करेंगे। तो इसका फंक्शन है कि अगर हमें हाई स्पीड ज्यादा हो जाए, हम नहीं चाहते कि ऑपरेट करना, तब हम इस यॉ कंट्रोल से पूरे स्ट्रक्चर को 90 डिग्री घुमा देंगे। These are the definitions obviously explained earlier. Blades, it's an important part, is made up of fiber, glass, reinforced polyester. Rotor is a combination of blade and hub. Pitch control, use where the pitch angle of blade changes according to the wind speed. Brakes, obviously aerodynamics and mechanical braking are used for overspeed protection, speed control. Low speed shaft before the gear and high speed shaft after the gear. Again the gearbox, its mechanical power generated by rotor blade is transmitted to the generator through two-stage gearbox. Generator, the important part of this assembly which is used to generate electricity. For this we have to use PMSG, permanent magnet synchronous generator, SEIG, self-excited induction generator, DFIG, doubly fed induction generator for the purpose of electricity generation. Controller, the important part, microprocessor based controller which monitors wind speed, direction of wind, power output and take proper yaw and pitch control. Again anemometer and wind vane used for wind speed direction monitoring. Nashal, housing of generator, the gearbox, yawing mechanism. High speed shaft, yaw drive and yaw motor. Yaw control continuously track and keep rotor axis in wind direction. यानी जैसे जैसे विंड डायरेक्शन चेंज होगी ये yaw कंट्रोलर्स पूरी असेंबली को उसके उस डायरेक्शन में उसको चेंज करता है। बिकॉज विंड डायरेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, किस डायरेक्शन से फिल होगी हमें नहीं पता, तो एक कंट्रोलर की जरूरत है ताकि हम अपनी पूरी असेंबली को, उस जनरेटर शाफ्ट ब्लेड्स को उस विंड डायरेक्शन के सामने रख सके। तो इसके लिए हमें योर ड्राइवर योर मोटर की जरूरत पड़ती है। नाउ द इंडियन सिनेरियो, MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, released the data in November 2019 of the generation of renewable energy capacity. It states that it has installed capacity of 84.39 gigawatt, out of which 37.28 gigawatt is from wind energy, 32 from solar, 9.9 from biopower and 4.6 from small hydro. Apart from this, 31 gigawatt capacity projects at various stages of implementation means it's under process. If you see the diagram here, continuous increment in wind energy capacity. Right from 2002 till 18 and 19, it is increasing year by year. Initially in 2002 it was around 5 gigawatt, less than 5 gigawatt. 2010 it is around 12 gigawatt. 2015 it is around 23 gigawatt, and 18 it is around 34 gigawatt, and in 19 it becomes 37.28 gigawatt. Talking about the power density in India, see this sky blue color, 0 to 100 watt per square meter. Most of the regions lie in this range, where the power density of wind in India is very less and it is not suitable for power generation. Power generation and installed area is that where
this power density is greater than 200. See the area. Red means 200 to 250, violet, green and yellow. These are the areas where the power density of wind in India is larger, where we can generate the power from wind energy. So most of these areas are Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, Rajasthan, etc. State-wise wind energy installed capacity. If we talk about the state-wise, Tamil Nadu is the leading state. After that, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and if you talk about the percentage, 32% generates Tamil Nadu. Of total wind energy, 32% is generated from Tamil Nadu. After that, Maharashtra, Gujarat, etc. Finally, the advantages and disadvantages. एडवांटेज सबसे पहले ये कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बिल्कुल फ्री है, रिन्यू कर सकते हैं, कितनी भी सनलाइट से आए वो बिल्कुल फ्री होती है. इट सप्लाइज पावर टू रिमोट एरियाज एंड अगेन इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. सी दीज टू डायग्राम्स. फर्स्ट इज कन्वेंशनल पावर प्लांट एंड नेक्स्ट वन इज wind energy system. This continuously sending pollutants to the atmosphere, and it is very very bad for the atmosphere, for the environment. And for wind energy system, it is eco-friendly and doesn't emit a single problem to the atmosphere. It is also cost effective, economically competitive with other modes of generation. It is reliable and has been used for ages. एक ज़माने पहले से ये चलता आ रहा है, विंड एनर्जीज को यूज करके उसको यूटिलाइज करते रहना. नाउ डिसएडवांटेजेस. देयर आर सम प्रॉब्लम्स आल्सो. बर्ड्स अ सीरियस ऑब्स्टेकल. बर्ड्स को हम रोक नहीं सकते, वो टरबाइंस के ब्लेड के सामने आ जाएंगे तो दोनों को हार्म हो सकता है. इसके अलावा ये सब जगह आप नहीं इंस्टॉल कर सकते, क्योंकि कुछ ही जगह पर है जहाँ पे हमें अच्छी डेंसिटी मिलती है और अच्छी स्पीड मिलती है, वहीं पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. इट इज अवेलेबल एट सेलेक्टेड ग्राफिकल लोकेशन. नेक्स्ट इज विंड कहाँ पे कब किस डायरेक्शन में होगी, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. विंड टर्बाइन डिजाइन इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स. इट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम. It requires storage batteries. It has a low energy density. सब जगह नहीं मिलती है. Threat to wildlife, noise disturbance also, and cost of wind turbine is there. These were the some disadvantages